Hello dear students, welcome to all of you in our Sindh College lecture series. Dear students, my name is Mansoor Ahmed. I am Assistant Professor in Department of Zoology, Degree College, Larkana. Dear students, today I am with you to discuss a topic, cellular respiration, from your first year biology book, chapter number 11, Bioenergetics. So let's start. Today we are going to discuss a topic, cellular respiration, and the topic is taken from your first year book, first year biology, chapter number 11, Bioenergetics. So let's start from the definition. What is cellular respiration? What is cellular respiration? Cellular respiration is the process by which cells combine oxygen with glucose to produce carbon dioxide and water. Cellular respiration, जैसा कि नेम से इंडिकेट है, ये सेल्स में होता है. During cellular respiration, oxygen combine with glucose, and as a result, the glucose is broken into carbon dioxide and water. और जब इस रिएक्शन में ग्लूकोज के कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उनकी एनर्जी को यूज करते हुए एनर्जी रिच कंपाउंड्स एटीपी बना दिए जाते हैं. सो सबसे पहले हम इक्वेशन को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज इक्वेशन फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन? दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन. C6H12O6 molecular formula of glucose, and this oxygen we inhale from the air. When oxygen combines with the glucose is broken into 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water, and the chemical energy released during this reaction is used to create energy rich compounds known as ATP, adenosine diphosphate. इस केमिकल रिएक्शन में जब ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है तो ग्लूकोज में आप सबको पता है कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और जब ये कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उस कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी से एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ फॉस्फेट अटैच किया जाता है और वो ग्लूकोज के कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी एटीपी में स्टोर हो जाती है. Cl. During cellular respiration, it is the process by which cells transfer chemical energy from sugar molecule to ATP molecule. जब ग्लूकोज के कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उनकी एनर्जी से एक एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी बनाया जाता है. और आप सबने पढ़ा होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज रेडॉक्स रिएक्शन. इसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया जाता है. नाउ लुक एट हियर. ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन, glucose is oxidized into carbon dioxide. Glucose is oxidized into carbon dioxide. Glucose is oxidized into carbon dioxide. And what is oxidation? In short, OIL. Oxidation is loss of hydrogen. Oxidation is loss of hydrogen. When glucose is broken, glucose loses hydrogen atoms along with the pair of electrons. जब ग्लूकोज से हाइड्रोजन के एटम्स रिलीज होते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम होता है NAD, जो इन हाइड्रोजन आयंस को इलेक्ट्रॉन के साथ पिकअप करता है. NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH में, और NADH वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है. एंड द ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, and the oxygen is reduced into water. During cellular respiration, the oxygen is reduced into water. Oxygen is reduced into water.
What is reduction in short form RIG? RIG, RIG. Reduction is gain of hydrogen. तो हमेशा याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि in cellular respiration which molecule is oxidized and which molecule is reduced. So the glucose is oxidized into carbon dioxide and oxygen is reduced into water. Dear students, अब हम cellular respiration के stages पढ़ेंगे. There are, as you know, there are 3 stages of cellular respiration: glycolysis, Krebs cycle, and electron transport chain. Now there are 3 main stages of cellular respiration. You see here the diagram of cell. The diagram of cell. This is the cytoplasm of a cell, and here you see the powerhouse of the cell known as mitochondria. Dear students, the first stage of cellular respiration is glycolysis, and glycolysis takes place in cytoplasm. Cellular respiration का पहला स्टेज glycolysis जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है. Now look at here. मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. यहां पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेज ऑपरेट होता है, Krebs cycle. So where does the Krebs cycle takes place? In mitochondrial matrix. First stage glycolysis taking place in cytoplasm. Second stage Krebs cycle taking place in the mitochondrial matrix, and the third stage of cellular respiration is known as इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब यहां पे फोकस कीजिएगा. ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स नजर आ रहे हैं. इनको हम पढ़ाते हैं क्रिस्टी, और क्रिस्टी पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन का तीसरा स्टेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑपरेट होता है. Now these folds of the inner membrane of mitochondria are called cristae, and cristae are sites for electron transport chain. और इसके साथ में आपको यह भी बताता चलूं, there are, as you know, there are 38 ATPs generated during per molecule of glucose. तो याद रखिएगा, 2 ATPs are generated by glycolysis, 2 ATP are generated by Krebs cycle, and the remaining 34 are generated by electron transport chain. Now look at here. Glycolysis generate 2 ATPs. Now look at here. It is the Krebs cycle that generate 2 more ATPs. And now look at here. It is the electron transport chain that generate 34 ATP. ये जो 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस के और 2 ATP क्रेब्स साइकिल के जनरेट होते हैं, ये 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में जनरेट होते हैं. मैं आगे चल के इसको एक्सप्लेन करूंगा. 2 ATPs from glycolysis and 2 ATPs from Krebs cycle are generated by a process called substrate level phosphorylation, and the remaining 34 ATPs which are generated by electron transport chain, they come from oxidative phosphorylation. Electron transport chain से जो 34 ATP generate होते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं oxidative phosphorylation. Dear students, today we will mainly focus on the first stage of cellular respiration, that is glycolysis. आज हम glycolysis के steps पढ़ेंगे. Now glycolysis breaks down a molecule of glucose into 2 molecules of pyruvate, a 3 carbon molecule. Look at here. Glucose having 6 carbon is broken down into 2 molecules of pyruvate, each with 3 carbon atoms. Glycolysis में ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया जाता है 2 molecules of pyruvic acid, each having 3 carbon atom. अब यहां पे फोकस कीजिएगा. This stage doesn't require oxygen. That is why it is called anaerobic stage of cellular respiration. Glycolysis में
सेल्स ऑक्सीजन को यूज नहीं करते, जिसकी वजह से इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और अब हम आगे मूव करेंगे स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। Dear students, this is the overall equation for glycolysis pathway. पहले स्टेप में जब ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है 2 ATPs का। एक स्टेप नंबर 1 और एक स्टेप नंबर 3 में 2 ATP कंज्यूम कर दिए जाते हैं। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के इनिशियल स्टेजेस में 2 ATP कंज्यूम कर दिए जाते हैं। और जब हम उसके प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, इन द स्टेप नंबर 10 वी विल हैव 2 molecules of pyruvate, in the step number 6 we will have 2 molecules of NADH। और ये जो 4 ATPs प्रोड्यूस होते हैं, इनमें 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं स्टेप नंबर 7 पे और 2 प्रोड्यूस होते हैं स्टेप नंबर 10 पे। 4 ग्रॉस ATP प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, मगर उसमें से 2 कंज्यूम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम नेट ATP 4 नहीं पढ़ाते, हम नेट ATP 2 पढ़ाते। और हमको इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी मिलेंगे, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेट्स स्टार्ट द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। द स्टेप 1 इज फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। हम ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स पढ़ रहे हैं। व्हाट इज स्टेप 1? Phosphorylation of glucose. What is phosphorylation? Addition of phosphate is called phosphorylation. ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप 1 में ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे एक फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है। इस स्टेप को हम पढ़ाते हैं phosphorylation. Now this is the carbon structure of glucose. You see how many carbons? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the carbon structure of glucose. Now look at the carbon number 6. अब आप ध्यान रखिएगा, कार्बन नंबर 6 पे यहां पे एक फॉस्फेट ऐड कर दिया जाएगा। यहां पे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे एक फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ये फॉस्फेट किस मॉलिक्यूल से डोनेट हुआ है? इट इज डोनेटेड फ्रॉम ATP। अब यहां पे फोकस कीजिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ATP इज ब्रोकन इनटू ADP। ATP अपना एक फॉस्फेट लूज करता है, ADP में कन्वर्ट हो जाता है और वो फॉस्फेट ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे ऐड कर दिया जाता है। और इस कार्बन नंबर 6 पे ऐड करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, हेक्सोकाइनेज। Hexokinase catalyzes this reaction and it puts a phosphate at carbon number 6 of glucose. That was the first step, phosphorylation. अब हम मूव करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के सेकेंड स्टेप पे, and the second step is isomerization, formation of isomer. Now the second step is isomerization, formation of isomer. During this step the glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate is converted into its isomer fructose 6 phosphate with the help of an enzyme phosphoglucoisomerase. Dear students, you know glucose is aldohexose and fructose is कीटोहेक्सोज। तो इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का एक आइसोमर बनाया जाता है, उस आइसोमर का नेम है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज आल्सो फास्फोराइलेशन। Addition of phosphate is called phosphorylation, and during this step fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 biphosphate or bisphosphate. Now look at here. अब आप देखें इस के कार्बन नंबर 6 पे आपको एक फॉस्फेट ऑलरेडी पहले नजर आया था। अब यहां पे फोकस कीजिए, कार्बन नंबर 1 पे एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है और ये फॉस्फेट कहां से आता है? अगेन द फॉस्फेट कम्स फ्रॉम ATP. Another ATP is invested at step number 3. ये अपना फॉस्फेट लूज करता है और वो फॉस्फेट
कार्बन नंबर 1 पे ऐड कर दिया जाता है और इसको ऐड करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है. दिस एंजाइम इज कॉल्ड phosphofructokinase. Phosphofructokinase. So dear students, first step was phosphorylation, second step was isomerization, and third step was again phosphorylation. अब हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 4 पे, और ये जो स्टेप नंबर 4 अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी स्टेप से इस प्रोसेस को नेम दिया गया है ग्लाइकोलाइसिस. नाउ स्टेप नंबर 4, फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate undergo lysis stage. Lysis means breaking. ये वो पहला स्टेप है जहां पे ये शुगर ब्रेक हो जाएगा. ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ शुगर. नाउ फ्रक्टोज 1,6-biphosphate is broken into two triose sugars, two triose molecules, each having 3 carbon. One is known as glyceraldehyde 3-phosphate, in short G3P. The second is dihydroxyacetone phosphate, in short DHAP. And remember, these two molecules are isomers of each other, and the enzyme which is used to break fructose 1,6-biphosphate is aldolase. Aldolase enzyme इस शुगर को ब्रेक करता है 3 कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स में, and these G3P and DHAP are the isomers of each other. तो इस स्टेज से नेम दिया गया है ग्लाइकोलाइसिस. ये ग्लाइकोलाइसिस का वो पहला स्टेप है जिसमें शुगर ब्रेक डाउन हो रहा है दो ट्रायोज मॉलिक्यूल्स में. One is in short called G3P and the second is DHAP. अब हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 5 पे. स्टेप नंबर 5, DHAP is rearranged to form another G3P. इसमें एटॉमिक अरेंजमेंट है वो चेंज होगी, और इसमें जो DHAP है वो रीअरेंज हो जाएगा G3P में. सी है, एक G3P जैसा है वैसा ही रहेगा. One G3P remains same. Now this G3P is rearranged to form another G3P. एक एंजाइम उसको रीअरेंज करता है. DHAP is converted into G3P by triose phosphate isomerase. तो डियर स्टूडेंट्स, हमको स्टेप नंबर 5 पे दो मॉलिक्यूल्स मिले हैं. बोथ आर नोन एज G3P, glyceraldehyde 3-phosphate. अब जो स्टेप नंबर 6 हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टेप नंबर 6 पे दो NAD को रिड्यूस कर दिया जाएगा दो NADH2 में. दो मॉलिक्यूल मिलेंगे NADH के. नाउ स्टेप नंबर 6, द एंजाइम G3P dehydrogenase transfer one hydrogen molecule from G3P. As a result, the NAD is reduced to form NADH. Now look at here. ये जो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है G3P का, ये हाइड्रोजन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, और देखिए उस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा NAD+, और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH+H. NAD is reduced by gaining 1 hydrogen and 2 electrons. NAD को रिड्यूस किया गया है NADH में. अक्सर तौर पे स्टूडेंट्स इस सेकंड +H के बारे में पूछते हैं. ये हाइड्रोजन का आइटम तो गेन किया NAD ने, वो रिड्यूस हो गया NADH में. अक्सर स्टूडेंट्स इस +H के बारे में पूछते हैं. डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड +H is second proton and it is donated to solution. देखिए इसने हाइड्रोजन लूज किया, हाइड्रोजन पिकअप किया NAD ने, कन्वर्ट हो गया NADH में. अब ये मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन लूज करेगा और वो पिकअप करेगा NAD. अगेन द NAD is reduced to form NADH+H. तो स्टेप नंबर 6 पे दो NAD को NADH में कन्वर्ट कर दिया जाता है. और देखिए अब साइटोसोल से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट इस मॉलिक्यूल में ऐड होगा और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट इस मॉलिक्यूल में ऐड होगा. See here, one phosphate, inorganic phosphate is added to one G3P, and now look at here, another phosphate is added to another G3P. Now see the products of step number 6.
यहां पे कार्बन नंबर 1 पे एक फास्फेट ऐड कर दिया जाता है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। और यहां पे भी पहले नंबर कार्बन पे एक फास्फेट ऐड कर दिया जाता है, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। तो स्टेप नंबर 6 पे हमको दो मॉलिक्यूल मिले हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप नंबर 6 पे ये जो दो NADH जनरेट हुए हैं इनको हाइड्रोजन एटम्स अलोंग विद इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते हैं। तो इनको इलेक्ट्रॉन्स क्यों दिए जाते हैं, इनको हाइड्रोजन क्यों दी जाती है? रिमेंबर they are given hydrogen along with the pair of electrons because these NADH are carriers of electrons and they have to carry this hydrogen and electrons to the oxygen। ये यहां से मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहां पे ये हाइड्रोजन एटम along with the electron ऑक्सीजन को दे देंगे and the oxygen is reduced to form water। तो ये आगे मूव करेंगे। अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 7 पे। स्टेप नंबर 7 पे what is step number 7 of glycolysis? Phosphate is transferred from 1,3-biphosphoglycerate to ADP to form ATP with the help of phosphoglycerate kinase। इस एंजाइम के हेल्प से दो ADP को कन्वर्ट कर दिया जाएगा दो ATP में। अब देखें ये जो कार्बन नंबर 1 का आपको फास्फेट नजर आ रहा है ये लूज होगा, ये फास्फेट लूज होगा, ये फास्फेट ऐड कर दिया जाएगा ADP को और ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। और यहां से भी ये जो कार्बन नंबर 1 का आपको फास्फेट नजर आ रहा है ये लूज कर दिया जाएगा और ये दे दिया जाएगा ADP को और ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। स्टेप नंबर 7 पे हमको ये जो दो ATP नजर आ रहे हैं, these two ATPs are formed by substrate level phosphorylation। ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप नंबर 7 पे ये जो दो ATP प्रोड्यूस हुए हैं इनको पढ़ाते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। नाउ व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन? जब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ फास्फेट अटैच किया जाता है, अगर ये फास्फेट किसी भी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल की तरफ से ट्रांसफर किया गया हो तो इसको हम पढ़ाते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और वो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। These are the intermediates of glycolysis। तो याद रखिएगा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ग्लाइकोलाइसिस में भी होता है, क्रेब्स साइकिल में भी होता है, मगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ATPs प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे प्रोसेस से आते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। And the 1,3-bisphosphoglycerate is now converted into 3-phosphoglycerate and 1,3-bisphosphoglycerate is also converted into 3-phosphoglycerate। तो स्टेप नंबर 7 पे हमको दो मॉलिक्यूल्स मिले हैं 3-phosphoglycerate के। अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 8 पे। The phosphate of both 3-phosphoglycerate molecule is relocated from third to second carbon by the help of enzyme known as phosphoglyceromutase। phosphoglyceromutase। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेप में ये जो आपको फास्फेट कार्बन नंबर 3 पे नजर आ रहा है इट विल बी शिफ्टेड टू कार्बन नंबर 2। इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा इस एंजाइम के हेल्प से कार्बन नंबर 2 पे। नाउ सी हियर द फास्फेट इज शिफ्टेड टू कार्बन नंबर 2 and the molecule formed is called 2-phosphoglycerate। and look at here again the phosphate is shifted from 3 to position 2 and we have another molecule of 2-phosphoglycerate। अब हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 9 पे जहां पे दो वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। The enzyme enolase removes a water molecule from 2-phosphoglycerate to form phosphoenol pyruvate। ये जो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है 2-phosphoglycerate, इसमें से एक मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज कर दिया जाता है और इससे भी ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है
2-फॉस्फोग्लाइसरेट, इससे भी एक वाटर रिमूव कर दिया जाता है। कौन से एंजाइम के हेल्प से? द एंजाइम एनोलेज, ये एंजाइम वाटर को रिमूव करता है। एंड इन द एंड वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोइनोल पायरुवेट। अब हम मूव करेंगे लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 10 पे, जहां पे हमको 2 एटीपी और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अ फॉस्फेट फ्रॉम phosphoenol pyruvate is transferred to ADP to form pyruvate and ATP by the action of pyruvate kinase। यहां पे देखिए, ये जो कार्बन नंबर 2 का फॉस्फेट है वो ऐड कर दिया जाएगा ADP में और ADP को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ATP में। And look at here, you see the phosphate at carbon number 2 and this is transferred to another ATP to convert it into ATP। तो 2 ATP प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं और ये प्रोसेस है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। Here we have one molecule of pyruvate and here we have another molecule of pyruvate। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट करता है 6 कार्बोनिक ग्लूकोज पे और डियर स्टूडेंट्स वो एंड करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट पे। स्टेप नंबर 10 पे ये जो 2 एटीपी जनरेट किए गए हैं अगेन बाय प्रोसेस ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो आज हमने 10 के 10 स्टेप्स कवर कर लिए ग्लाइकोलाइसिस के। सबसे एंड में हम प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, these are the products of glycolysis। स्टेप नंबर 10 पे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे। याद रखिएगा जो नेट एटीपी हैं वो 2 हैं, हालांकि 4 एटीपीस बनते हैं, 2 स्टेप नंबर 7 पे, 2 स्टेप नंबर 10 पे, मगर 2 एटीपी कंज्यूम कर दिए जाते हैं, बाकी जो बच जाते हैं वो 2 नेट एटीपी। स्टेप नंबर 6 पे 2 NADH को रीजनरेट कर दिया जाता है और स्टेप नंबर 9 पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। Dear students, that's all about the glycolysis. Thank you. Wish you all of the best.